Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, we are discussing the chapter Life in the Temperate Grasslands. In last period, we have discussed many topics. Mainly, actually, we were discussing the two areas, the prairies of USA and Canada and the veld of South Africa. These are the temperate grasslands of the world. So in last period we have discussed about the prairies of the USA and Canada. We have discussed about flora and fauna of the prairies, about climatic conditions of the prairies, and about people and their economic activities of the prairies. Today, mainly we will discuss about the veld of South Africa that we have to discuss today. So, it is my humble request to all my students, please open your book, chapter number 11, and the chapter is Life in the Temperate Grasslands. So let's start today's class with the chapter Life in the Temperate Grasslands, and we will discuss the veld of South Africa. So dear students, Life in the Temperate Grassland, this is chapter number 11, and the veld, we are discussing about the veld. So the velds are the temperate grasslands found in South Africa. Velds क्या हैं? They are the temperate grasslands. Where it is found? It is found in South Africa. And you know South Africa lies at the southern tip of Africa. The country lies at the southern tip of Africa, and it is bordered on the northeast by Swaziland and Mozambique. Understand? And on the north by the Botswana and Zimbabwe, and in the northwest by नामीबिया. क्या क्या आपको समझना है कि द कंट्री मीन साउथ अफ्रीका लाइज एट द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका. ये अफ्रीका के सदर्न टिप पे है, और इट इज बॉर्डर्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट में स्वाजीलैंड और मोजाम्बिक से, नॉर्थ में बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से, एंड नॉर्थ वेस्ट में नामीबिया से बॉर्डर्ड है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्वाजीलैंड एंड मोजाम्बिक, नॉर्थ बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे, एंड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय नामीबिया. अब वेस्ट में क्या है? सो टू द वेस्ट एंड द साउथ इज द अटलांटिक ओशन, एंड टू द ईस्ट इज द इंडियन ओशन. इसके वेस्ट और साउथ में अटलांटिक ओशन है, और इसके ईस्ट में इंडियन ओशन है. तो आपने देख लिया कि हाउ इट इज बॉर्डर्ड: नॉर्थ ईस्ट स्वाजीलैंड एंड मोजाम्बिक, नॉर्थ बाय बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे, नॉर्थ वेस्ट बाय नामीबिया, वेस्ट एंड साउथ बाय द अटलांटिक ओशन, एंड ईस्ट इज द इंडियन ओशन. इट इज बॉर्डर्ड लाइक दैट. देन most of the South Africa is high plateau which slopes from east to west. ज्यादातर जो अफ्रीका का पोर्शन है ना, वो हाई प्लेटो है, और वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसके स्लोप हैं. The north eastern part of the plateau is known as the high veld. इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना प्लेटो का, उसी को बोलते हैं द हाई वेल्ड because of its height. So the northeastern part of the plateau is known as the high veld.
Weld, you know what is the meaning? Weld, actually weld is a Dutch word and it means filled. तो weld का मतलब होता है filled और ये एक Dutch word है. So the height of the weld ranges between 600 meter and 1100 meter above the sea level. वेल्ड का जो हाइट है वो उसका जो रेंज है वो 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है अबव द सी लेवल. और यू नो द वेल्ड इज बाउंडेड बाय द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट एंड कालाहारी डेजर्ट ऑन द वेस्ट. जो वेल्ड है वो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स ईस्ट में और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट से बाउंडेड है. क्लियर? एंड अ रेंज ऑफ हिल्स जिनको विट वाटर सैंड कहते हैं, इट रन्स अक्रॉस द वेल्ड. सो अ रेंज ऑफ हिल्स कॉल्ड विट वाटर सैंड रन्स अक्रॉस द वेल्ड. वहां पे जो रिवर्स भी हैं विच ड्रेन्स द वेल्ड और दिस रीजन. तो द रिवर्स आर द ऑरेंज एंड लिम्पोपो. These are the rivers and its tributaries. So the Orange and Limpopo river along with their tributaries, they drain the region. वो पूरे region को drain करते हैं. Clear रहेगा? So the Orange and Limpopo rivers along with its tributaries, they drain the entire region of Weld. Clear? After that, we will discuss about climatic conditions of the chapter. So dear students, climatic conditions, South Africa lies in the warm temperate zone of the southern hemisphere. ये जो साउथ अफ्रीका है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर के वार्म टेम्परेट जोन में पाया जाता है. This is situated in the warm temperate zone of the southern hemisphere. And you know this region experiences mild climate. यहाँ ये जो रीजन है ना इसका क्लाइमेट माइल्ड है. और ऐसा क्यों है? Because the altitude of the plateau, because the presence of the oceans on three sides and the cold Venezuela current which flows along the west coast. मैंने कहा कि इसका जो एक तो साउथ अफ्रीका जो है इट इज इन वार्म टेम्परेट जोन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. दिस रीजन एक्सपीरियंसेस माइल्ड क्लाइमेट. इधर का जो क्लाइमेट है दैट इज माइल्ड. और ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेटो. प्लेटो के एल्टीट्यूड के कारण, then the presence of the oceans on the three sides and the cold Venezuela current which flows along the west coast. These are the reasons. That's why the climate of this region is mild. Means this region experiences mild climate. In the high veld, the summers are warm and wet and the day temperature reaches up to 22 degrees Celsius at Johannesburg. जो हाई वेल्ड है ना वहां पे समर्स वार्म है, वेट है, और जो डे टेम्परेचर है जोहानिसबर्ग में तो वो 22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. सो समर्स आर वार्म एंड वेट. Day temperature reaches up to 22 degrees Celsius. And most of the rainfall occurs during the summer and decreases from south to north and also from east to west. ज्यादातर रेनफॉल कब होता है? समर में होता है. एंड अगर अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात करें तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओ रीजन में तो रेनफॉल का अमाउंट डिक्रीज होता चला जाएगा, या फिर अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ तो भी अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज है. तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द समर एंड डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. क्लियर? द विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई. अगर विंटर्स की बात करें तो दे आर कोल्ड एंड ड्राई, रेनफॉल नहीं होता. एंड टेम्परेचर्स वेरी बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस. कोल्ड विंटर्स आर वेरी कोल्ड
dry and temperatures vary between 5 degree Celsius and 10 degree Celsius. और पता है सबसे which is the coldest month? तो जुलाई is the coldest month. एंड रेनफॉल इज स्कैंटी, मैंने कहा ना ड्राई है ये सीजन, तो रेनफॉल बहुत कम होता है और कई जगहों पे सूखा पड़ जाता है. ड्रॉट्स कैन ऑकर ड्यूरिंग द जून जुलाई एंड अगस्त. जून जुलाई अगस्त में सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट्स हो जाता है. तो रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी ड्यूरिंग विंटर्स एंड जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोरा एंड फौना, डियर स्टूडेंट्स. Flora and fauna. So there are limited forests in this region due to semi-arid climatic conditions. Forests बहुत लिमिटेड हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना that is semi-arid, तो फॉरेस्ट बहुत कम पाए जाते हैं. And a major part of the plateau is covered with grass. और इस प्लेटो का जो बड़ा पोर्शन है ना वो ग्रास से कवर्ड है. और यहां पे रेड ग्रास भी ग्रो करते हैं. रेड ग्रास ग्रोज इन द बुश वेल्ड. रेड ग्रास जो है वो बुश वेल्ड में ग्रो करते हैं. अकेकिया एंड मरुला दे ग्रो इन द हाई वेल्ड. तो ये जो अकेकिया है एंड मरुला है ये हाई वेल्ड में ग्रो करते हैं. तो मैंने क्या बताया कि मेजर पार्ट ऑफ द प्लेटो इज कवर्ड विथ ग्रास व्हाइल रेड ग्रास ग्रोज इन द बुश वेल्ड. Acacia and Marula, they also grow in the high veld. Then look the bushlands and the grasslands. The bushlands and the grasslands in the high veld have one major handicap. ये जो bushlands और grasslands है ना high veld के, उनका एक मेजर हैंडीकैप है. क्या है? द एलिवेशन ऑफ द ग्रेजिंग लैंड्स इज बिटवीन 1000 मीटर एंड 2000 मीटर. ये जो एलिवेशन है ना ग्रेजिंग लैंड, जो एलिवेशन है ग्रेजिंग लैंड का वो क्या है? दैट इज, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एलिवेशन. ओके, सो द एलिवेशन ऑफ द ग्रेजिंग लैंड is between 1000 meter and 2000 meter. 1000 meter और 2000 meter पर उसका elevation है. And what is the result of this? So result of this, so what is the result of this elevation? मैंने कहा कि because the elevation of the grazing lands is between 1000 meter and 2000 meter and this results in the frost for a period of about 100 days in a year. पूरे एक साल में 100 days का frost का period होता है. And if we will talk about the animals which are found in this region or this area or in the veld are lions, leopards, cheetahs and kudus. So the elevation of grazing land is 1000 meter and 2000 meter. This results in the frost for a period of about 100 days in a year and the main animals found in the veld are lions, leopards, cheetahs and kudus. Then now dear students, we will discuss about the people and their economic activities in the veld. So we are discussing veld and now we will discuss about people and their economic activities. So the high veld has both tall and short grasses. ये जो हाई वेल्ड है ना यहाँ पे दोनों तरह के ग्रासेस होते हैं, टॉल एंड शॉर्ट, एंड इवन यू कैन फाइंड bushes also. So the high veld has both tall and short grasses and bushes. Trees are only found on the higher altitudes. यहाँ पे trees पाए जाते हैं but that only on higher altitudes and along the bank of rivers. तो आपको हायर एल्टीट्यूड पे ट्रीज मिल जाएंगे और रिवर बैंक्स के आसपास भी ट्रीज मिल जाएंगे. ठीक है, तो हाई वेल्ड में आपको टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस मिलेंगे, बुशेस मिलेंगे, ट्रीज आपको हायर एल्टीट्यूड पे मिलेंगे एंड रिवर बैंक्स पे मिलेंगे.
Then what about the soil of the world? So the soil is not fertile. वर्ल्ड का जो सॉइल है दैट इज नॉट फर्टाइल. तो अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वहां पे यू कैन अंडरस्टैंड दैट द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ऑन ए लार्ज स्केल इज नॉट पॉसिबल. सो द वर्ल्ड इज मोर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग देन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. वहां पर कैटल रियरिंग ज्यादा सुटेबल है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के कंपेयर में. सो पीपल डू द सेम. And you know the grasslands are ideal for cattle and sheep rearing. वो जो grasslands है ना वो cattle and sheep rearing के लिए ideal है. And you know cattle are reared in the warmer and wetter eastern part. वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में जो कि वार्मर भी है एंड वेटर भी है वहीं पे कैटल को रेयर किया जाता है. सो कैटल आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर ईस्टर्न पार्ट. And why they are reared? So they are reared for milk and meat. उनको मिल्क और मीट के लिए रेयर किया जाता है. After that, creameries. Creameries make butter and cheese for domestic needs as well as for export. वहां पे जितने भी creameries हैं वो बटर बनाते हैं वो चीज बनाते हैं and that is for both domestic needs as well as for export also. Some farmers cultivate crops and rear animals on the same field. देखो कुछ ऐसे फार्मर्स हैं ना देख वो क्रॉप भी कल्टीवेट करते हैं and they rear animals on the same field. So they cultivate crops and they rear animals at the same time and on the same field. और अगर क्रॉप्स की बात करें the main cultivated crops are maize, wheat, barley, oats, tobacco, sugarcane, cotton and potatoes. तो जो मेन कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं? दे आर मेज, व्हीट, बार्ली, ओट्स, टोबैको, sugarcane, cotton and potatoes. That you have to keep it in your mind. After that, ship rearing is the main occupation in the world. World का अगर आपसे कोई main occupation पूछे तो that is ship rearing. वहां पे ship जो है बहुत large scale पे rear किया जाता है. And you know ship are reared. Why ship are reared there? तो ship are reared for the production of wool. Ship जो है वहां पर wool production के लिए rear किए जाते हैं. और वहां पे जो शिप होते हैं ना दे आर ऑफ फाइन क्वालिटी एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ द मेरिनो ब्रीड. मेरिनो ब्रीड बहुत फाइन क्वालिटी है. सो द शिप आर फाइन क्वालिटी एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ द मेरिनो ब्रीड. फाइन क्वालिटी के शिप है, मेरिनो ब्रीड के शिप है. एंड द अंगोरा गोट्स. द अंगोरा गोट्स यील्ड मोहेयर एंड लेदर देयर. वहां पे अंगोरा गोट्स से क्या क्या मिलता है? मोहेयर एज वेल एज लेदर. और यू नो साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोहेयर इन द वर्ल्ड. साउथ अफ्रीका मोहेयर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में. सो दिस कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोहेयर इन द वर्ल्ड. It is also second largest exporter of merino wool in the world after Australia. यहाँ पे merino wool भी बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेरिनो वूल इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेरिनो वूल इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया इट इज द वर्ल्ड और यू कैन से साउथ अफ्रीका. Then after that, dear students, we have different sections and so dear students, now what I was telling that the Angora goats yield mohair and leather, and as I told that Africa is the largest producer of mohair in the world and it is also second largest exporter of merino wool in the world after Australia. After that we are for the next slide. You know the world is rich in minerals. ये जो वर्ल्ड है ना ये मिनरल्स में बहुत रिच है. गोल्ड इज फाउंड इन द वेट वाटर सैंड. गोल्ड जो है वेट वाटर सैंड में पाया जाता है. एंड यू नो द माइनिंग ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स हैव अट्रैक्ट द यूरोपियंस टू साउथ अफ्रीका.
ये जो गोल्ड एंड डायमंड का जो माइनिंग है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, खासतौर से यूरोपियंस, दे केम टू साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका है फॉर द पर्पस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड माइंस, है ना। एंड यू नो द डिस्कवरी ऑफ आयरन ओर एंड कोल, बाद में जब वहां पे आयरन ओर और कोल का डिस्कवरी हुआ, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो वहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो यूरोपियंस अट्रैक्टेड टू दिस रीजन बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड डायमंड माइंस, एंड व्हेन iron ore and coal was discovered in this area, it led to the development of iron and steel industry. And you know, जोहानिसबर्ग, हम लोग जोहानिसबर्ग की बात कर रहे थे। जोहानिसबर्ग is the gold capital of the world. जोहानिसबर्ग दुनिया का गोल्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सेंटर है। नाउ द किम्बरले, किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड्स। जिस तरह से जोहानिसबर्ग गोल्ड के लिए फेमस है, किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड्स। And you know, these areas have a well-developed system of transport and communication. ये एरियाज चूंकि डायमंड एंड गोल्ड के जो है, ये एरियाज यहाँ पे बहुत सारे माइंस हैं, तो ये यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज वेरी डेवलप्ड, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट इज वेरी डेवलप्ड, एंड दीज आर हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। So dear students, mainly we discussed about weld today. आज हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया? तो we discussed about weld, and we had already discussed about the prairies of America and Canada, prairies of USA and Canada. So it is my humble request to all my students that please read all the topics carefully. Please go through all the topics of the chapter. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.